Alhamdulillahi Rabbil Alameen. By the grace of Allah Almighty, today I am starting a new series on Introduction to Law of Torts. This series will be highly beneficial for law students engaged in BA LLB, LLB, and LLM. In the first lecture of this series, I will try to cover the meaning and definition of tort. So, what is tort? As we notice that all the happenings or activities taking place in our surrounding on the ground of their consequences, either they are right or wrong. जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, तो उन तमाम एक्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस की बुनियाद पर हम उन तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम एक्ट्स को या तो राइट या रॉन्ग की कैटेगरी में रखते हैं। लिहाजा जो भी एक्ट्स कमिट हो रहे हैं वो या तो राइट हैं या रॉन्ग हैं। सो एक्ट्स विच नॉट हार्म पीपल आर राइट, इट इज़ द जनरल परसेप्शन। हमारा मानना ये है कि जिन एक्टिविटीज़ से किसी को हार्म नहीं होता है दे आर लॉफुल, मीन्स कि लॉ ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता है जिससे किसी को हार्म नहीं होता हो। अनदर हैंड, द एक्ट्स विच कॉज हार्म टू पीपल आर wrongs. Such acts cannot be justified. So, further these wrongful acts or omissions can be classified into two categories, which are civil or criminal. Means the wrongs are either civil in nature or criminal in nature. For example, acts or activities only harm to individual. For example, if a wrongful activity causing financial loss to an individual, causing loss of property to an individual, causing harm to reputation of an individual, these wrongful activities or these wrongful acts will be placed in the class of civil wrong. On the other hand, there are certain wrongful activities or acts which harm society at large. For example, if a person commits an act of loot, it threats the entire society. Dacoity, murder, rape, kidnapping, etc. So these are certain wrongful activities which threats or cause harm to the society at large. So such type of wrongful activities will be covered under the head of criminal activities. On the other hand, the wrongful acts which only harm to an individual, they are covered under the head of civil wrongs. अब civil wrongs की अगर हम बात करें, if a person by breaching a trust causing harm to others, it is also a civil wrong, because of in case of a trust, if the trustee commits a wrongful act and by committing a wrongful act harms the beneficiaries of that particular trust, this is a civil wrong, because the only beneficiaries of the trust are suffering the loss. Here the entire society is not suffering the loss. So breaching the trust and causing harm to the beneficiaries, it is a wrongful act, but will be placed in the category or in the class of civil wrongs. Causing harm to someone by breaching a contract, it is also a civil wrong, because of only contracting party, one of the party of the contract is suffering a loss. So it is also a civil wrong. All the tortious activities or act of torts are civil wrong in nature. अब हमें यहाँ ये देखना है कि जो सिविल रॉन्ग हैं, यानी कि किसी
ऐसी रॉन्गफुल एक्टिविटीज़ जिनके करने से किसी इंडिविजुअल को हार्म कॉज किया जाता है, it may harm the economic interest of a person. An act may harm physical interests of a person. Certain acts may harm the mental health or physical health. Some acts may harm the reputation of a person. These activities on the ground of their consequences, because they are harming the interest of people, such activities can be placed as wrongful act. So all the tortious activities are civil wrong in nature. With the help of some important definitions given by renowned scholars, I will try to explain the actual meaning of torts. For example, Section 2M of the Limitation Act 1963 define the term tort. According to the section, tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. यानी कि टॉर्ट से मुराद उन सिविल रॉन्ग्स से है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। मतलब ये कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस होता है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के होने से जो पार्टी सफ़र करती है, जिस पार्टी को कोई लॉस होता है, जिस पार्टी को कोई इंजरी होती है, या इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर कोई बेनिफिशियरी किसी बेनिफिशियरी को कोई लॉस होता है तो उसके लॉस को रिकवर कराने के लिए, उन मैटर्स को डील करने के लिए हमारे पास में सेपरेट लेजिस्लेशन है। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट एक्ट हमारे पास है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामलों को डील करने के लिए हमारे पास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है मौजूद है। लिहाजा ऐसे स्पेसिफिक मामले जहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला हो या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो, चूँकि ये भी सिविल नेचर के हैं, लिहाजा इस तरह के मामलों को हम टॉर्ट के परव्यू से बाहर रखेंगे और इन या फिर जो इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस की बात जहां होती हो, किसी ब्रीच ऑफ इक्विटेबल ड्यूटी के से किसी इक्विटेबल ऑब्लिगेशन का सवाल पैदा हो, तो ऐसे सर्टेन केसेस जो है टॉर्ट के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने भी सिविल नेचर के रॉन्गफुल एक्ट्स हैं, या यूं कहिए कि अगर किसी के ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने से किसी का लॉस ऑफ राइट हो रहा है, किसी का कोई प्रोटेक्टिव इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है, या यूं कहिए कि किसी को अगर किसी रॉन्गफुल एक्ट से अगर इंजरी कॉज होती है तो उस इंजरी की रिकवरी के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट इन्वॉल्व होगा या लॉ ऑफ टॉर्ट उस मामले को डील करेगा। लिहाजा टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. This definition is mentioned in section 2M of the Limitation Act 1963. Another very important definition which is given by Samand. According to Samand, tort is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligation. तो सामंड के मुताबिक टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके होने पर विक्टिम के लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का प्रोविज़न होगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब ये कि जो हार्म हुआ है उसके लिए पहले से कोई फिक्स रेमेडी नहीं है। ये कोर्ट लिक्विडेट करेगा कि किसी टॉर्ट के होने से जो विक्टिम को लॉस हुआ है, जो विक्टिम को हार्म पहुंचा है, वो उस हार्म की रिकवरी क्या होगी। लिहाजा जनरली अगर कोई फिज़िकल, मेंटल, इकोनॉमिक लॉस अगर किसी टॉर्ट के करने से किसी को होता है तो उसकी रिकवरी के लिए कोर्ट तय करता है कि क्या मुआवजा, जो भी रुपए पैसे में मुआवजा दिया जाता है, वो कंपनसेशन, वो मुआवजा कितना होगा, ये कोर्ट तय करता है। तो सामंड कहता है कि भाई
जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, यानी कि जो कोई टॉर्ट अगर हुआ है, तो विक्टिम के पास में राइट है कि वो कोर्ट से मैं उसके लिए एक्शन ला करके कोर्ट में मुकदमा करके रेमेडी हासिल कर सकता है। और ये रेमेडी क्या होगी? ये एक अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा, यानी कि इसका लिक्विडेशन, इसको तय जो है कोर्ट करेगा। साथ ही साथ सामंत ने भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामलों को और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामलों को, इसके अलावा इक्विटेबल जो ऑब्लिगेशंस हैं उन मामलों को टॉर्ट की कैटेगरी से, टॉर्ट के परव्यू से एक्सक्लूड रखा है। यानी कि उन मैटर्स को डील करने के लिए हमारे पास में सेपरेट लॉज हैं। लिहाजा अगर कोई मामला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन में आता है, कोई मामला ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के दायरे में आता है, कोई मामला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आता है, तो ऐसे मामलों को लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील नहीं करेगा। Another very important definition which is given by Winfield. तो according to Winfield, tortious liability arises from breach of a duty. और ये ड्यूटी कौन सी है? लीगल ड्यूटी। दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब के सब अगर कुछ राइट्स एंजॉय करते हैं, उनको कुछ राइट्स मिले हैं, तो उसके पैरेलल को रिलेटिव ड्यूटीज़ भी सभी की होती हैं। और वो ड्यूटी क्या है? Each and every person must respect the rights of others. Whoever by breaching this duty harms to another will be held liable. इसी को विनफील्ड ने tortious liability कहा है। तो if a person causing harm to another person by breaching his duty, then he will be held liable to compensate the victim. or such act which is causing injury to another person, causing legal harm to another person, causing violating the interest of another person, such act will be a tort. So according to Winfield, tortious liability arises from breach of duty primarily fixed by law. ये ड्यूटी कौन सी? कोई मोरल ड्यूटी नहीं, जो कि फिक्स्ड बाय द लॉ है, यानी कि जिसको लॉ ने फिक्स किया है। दिस इज टूवर्ड्स पर्सन जनरली, और एक ये हर एक के लिए है, यानी कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो हर एक इंसान के लिए हैं कि हम उनके राइट्स का रिस्पेक्ट करें। ऐसा कोई एक्ट ना करें जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले किसी भी इंसान के किसी लीगल राइट का उससे वायलेशन हो। एंड इट्स ब्रीच इज redressable by an action for unliquidated damages. अगर कोई ऐसा कोई एक्ट कमिट करता है जिससे किसी के राइट का वायलेशन होता है, लीगल राइट का वायलेशन होता है, तो ऐसी सूरत में जो विक्टिम है उसके पास एक राइट होगा, और वो राइट है टू टेक एन एक्शन, यानी कि मुकदमा लाने का अधिकार। और इस मुकदमे को ला करके वो क्या हासिल कर सकता है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि एक ऐसा मुआवजा, ऐसा कंपनसेशन, ऐसा उपचार जो कि पहले से फिक्स नहीं है। कोर्ट फिक्स करेगा कि पर्टिकुलर केस में क्या मुआवजा, क्या रेमेडी, क्या डैमेजेस दिया जाएगा। लिहाजा द बेसिक आइडिया विच इज़ indicated by these definitions is firstly, tort is a civil wrong, and secondly, every civil wrong is not a tort. There are other civil wrongs also, like breach of contract and breach of trust. So in the light of these definitions, we can conclude that the basic idea which is indicated by these definitions is firstly, tort is a civil wrong, and secondly, every civil wrong is not a tort. There are some other civil wrongs also, such as breach of contract or breach of contract and breach of trust, etc. So there are some examples of act of torts. तो बेसिकली यहाँ हमने जानने की कोशिश की कि टॉर्ट क्या है। तो टॉर्ट कोई एक ऐसा सिविल रॉन्ग है, या यूँ कह लीजिएगा कि कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जिससे किसी दूसरे इंडिविजुअल के जिससे पीपल के
जो प्रोटेक्टिव इंटरेस्ट्स हैं, जो उसको कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, उनको अगर हार्म करता है वो एक्ट, तो वो ऐसे एक्ट को हम कह सकते हैं कि वो एक टॉर्ट है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पे मैं अब कुछ एग्जाम्पल्स पेश करता हूँ टॉर्ट्स के। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ एन एक्ट which is harming the economic interest or economic rights of another. For example, act of deceit, act of passing off, etc. For example, false imprisonment, assault, battery. These are certain heads covered as act of tort. Acts harming mental health of another. For example, negligence or nervous shock. Acts harming reputation of others. For example, act of defamation. So these are certain examples of tortious activities or torts: defamation, deceit, nuisance, nervous shock, assault, battery, negligence, etc. So these are certain activities which harms another. On the ground of harming another's rights, such acts which are harming the interest or rights of others are the examples of torts. These acts are studied under some specific heads like trespass, nuisance, assault, battery, deceit, passing off, nuisance, negligence, defamation, etc. तो हमारे इस डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो ये है कि टॉर्ट कोई भी एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है जो सिविल नेचर का है, यानी कि कोई भी ऐसा हार्मफुल एक्ट जिससे के करने से, जिसके होने से किसी दूसरे आदमी के लीगल राइट्स वायलेट होते हैं, या टेक्निकल टर्म में हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक्ट के करने से दूसरे आदमी को इंजरी होती है, लॉस ऑफ राइट होता है, तो ऐसा एक्ट जिससे दूसरों को लॉस ऑफ राइट या इंजरी कॉज होती है, वो तमाम एक्ट्स टॉर्ट हो सकते हैं बिसाइड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे रॉन्गफुल एक्ट जो बाय नेचर सिविल हैं, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को हमने एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ। कुछ एक रॉन्गफुल एक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो टॉर्ट और क्राइम दोनों में कवर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूसेंस, ये एक सिविल रॉन्ग भी है, एक क्रिमिनल रॉन्ग भी है। थेफ्ट एक सिविल रॉन्ग भी है, क्रिमिनल रॉन्ग भी है। प्रेजेंट टाइम में डिफेमेशन एक सिविल रॉन्ग भी है, क्रिमिनल रॉन्ग भी है, यानी कि एक क्राइम भी है और एक टॉर्ट भी है। तो बेसिकली टॉर्ट को समझने के लिए हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी हमें समझना होगा। अब सिंपली टॉर्ट में वो मामले कवर होंगे, या हम उन रॉन्गफुल एक्ट्स को टॉर्ट कह सकते हैं जो कि क्रिमिनल एक्ट्स नहीं हैं, यानी कि जिनकी नेचर क्रिमिनल नहीं है। दूसरा, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले नहीं है। तीसरा, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले नहीं है। इनके अलावा जितने भी रॉन्गफुल एक्ट्स हैं वो टॉर्ट में कवर हो सकते हैं, उनको हम टॉर्ट्स कह सकते हैं। लेकिन टॉर्ट कब कहेंगे, उसके लिए नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो ये है कि उस रॉन्गफुल एक्ट को इन ब्रीच ऑफ ड्यूटी परफॉर्म किया गया हो, यानी कि जिसने उस एक्ट को परफॉर्म किया है उसकी ड्यूटी थी कि वो ऐसा ना करे, और ये ड्यूटी कौन सी थी? लीगल ड्यूटी थी कि वो ऐसा ना करे। तो किसी ऐसे काम को जिसके लिए कानून मना करता हो और वो किया जाए, यानी कि इन ब्रीच ऑफ ड्यूटी उसको परफॉर्म किया जाए, और इसका इफेक्ट ये हो कि इसके होने से किसी को लीगल हार्म हुआ हो, इनके किसी के राइट का वायलेशन हुआ है। तो मेरा ये एक्ट अगर क्रिमिनल नेचर का नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला नहीं है, तो इट इज़ ए क्लियर एग्जाम्पल ऑफ अ टॉर्ट। अब जो भी इस तरह के रॉन्गफुल एक्ट्स हैं उनको हम डिफरेंट हेड्स के तौर पर, डिफरेंट नेम्स से हम उनको जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ एक नाम आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे पेश किए, दोबारा हम उनको रिपीट करते हैं
For example, act of defamation, it is an act of tort. Act of passing off, act of a nuisance, act of trespass, act of assault, act of battery, act of false imprisonment, act of malicious prosecution, act of deceit, etc. तो हम ये देखते हैं कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, कौन कौन से एक्ट्स टॉर्ट होंगे, उनके होने पर विक्टिम के लिए जो रेमेडी होगी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, उसके डिटर्मिनेशन के लिए कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाएंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का जो डिटर्मिनेशन करेगा कोर्ट वो कैसे करेगा, जो डिफेंडेंट है यानी कि जो टॉर्ट फीजर है जिसने वो टॉर्ट एक्ट ऑफ टॉर्ट कमिट किया है, उसके लिए क्या कोई डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं होगा, अगर डिफेंसेस अवेलेबल होंगे तो वो कौन कौन से डिफेंसेस अवेलेबल होंगे, ये इन तमाम बातों की जानकारी हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ज़रिए मिलती है। तो टॉर्टियस एक्टिविटीज़ को डील करने के लिए हमारे पास में लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, जिसमें हम उन वेरियस प्रिंसिपल्स को, वेरियस जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनको सीखेंगे जो तय करते हैं कि कौन कौन सी रॉन्गफुल एक्टिविटीज़ टॉर्ट में कवर होंगी, कौन कौन के होने पर विक्टिम के लिए क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी, और जो रेमेडी अवेलेबल होगी उसको फिक्स करने के लिए, उसको तय करने के लिए किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाएगा। अगर डिफेंडेंट के लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड उसको फेवर करने के लिए अवेलेबल रहता है, जिनको हम डिफेंसेस कहते हैं, तो वो डिफेंसेस क्या क्या होंगे, ये तमाम बातें लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमें सिखाता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बेसिकली टॉर्ट है क्या। तो टॉर्ट इज़ ए सिविल रॉन्ग जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं शामिल होंगी, जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले शामिल नहीं होंगे, और जिसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले शामिल नहीं होंगे। इनके अलावा जो भी रॉन्गफुल एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन ब्रीच ऑफ ड्यूटी के ज़रिए कमिट किए जाते हैं, जिसके होने से जो विक्टिम है उसको कोई लॉस ऑफ राइट होता है या जिसको हम इंजरी कहते हैं, तो उस इंजरी को रिकवर कराने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट हमारी मदद करता है, लॉ ऑफ टॉर्ट हमें गाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस